Welcome, students, in my biology class. Today we deliver the very important topic, that is the microbes. Microbes in human welfare. You know what the microbes are everywhere are present. Means that is present in the soil, water, air, inside our bodies and that of other animals and plant. ठीक है, प्लांट और एनिमल के बॉडी पे भी प्रेजेंट होते हैं. They are present even at site where no other life form could possibly exist. Sites such as deep inside the geyser, where the temperature may be as high as 100 degrees Celsius, and deep in the soil under the layer of snow, several meter thick, and is highly acidic environments. जो माइक्रोब्स है वहाँ भी ग्रोथ करते हैं जहाँ पर जीवन लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. जस्ट लाइक वी कीप्ड वन एग्जांपल, दैट इज द मेथनोट्रॉस बैक्टीरिया. ठीक है, हेलोट्रॉपिक बैक्टीरिया दैट इज ग्रोथ एट द वेरी हाई टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस भी ग्रोथ करते हैं. वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है लेकिन बैक्टीरिया वहाँ भी प्रेजेंट है. एंड बैक्टीरिया दैट इज आल्सो प्रेजेंट, दैट इज द वेरी डीप इनसाइड द सॉयल, मिट्टी के नीचे भी वो प्रेजेंट है. एज वेल एज द दैट इज इनसाइड द स्नो, जो बर्फ है उसके सरफेस पर प्रेजेंट होता है. एज वेल एज द इनसाइड द स्नो दैट इज आल्सो ग्रोथ well. Okay, and microbes that is very important role in human life. Different type of microbes. We deliver the topic microbes in the human welfare. So we discuss about there are different type of microbes are present in the environment, just like a protozoan, bacteria, fungi, and microscopic plants, viruses, viroids, and prions. Why that is called the microbes? Because we cannot easily identify through the naked eyes. He also read about the prions and viroids in previous chapter. In previous classes, just like class 11 में पढ़े होंगे. Prions क्या होता है? Prions दैट आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट है. ये प्रोटीन का बना हुआ इन्फेक्शियस एजेंट है जो विच कॉज द डिजीज, जो कॉज करता है डिजीज, कॉम मेड डिजीज. ओके, microbes, this is the very useful for the human beings. In previous chapter we know about them some microbes that is harmful. मैक्सिमम जो माइक्रोब्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल है. दे कॉज अ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज, दे अफेक्ट द डायरेक्टली लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स. बट सम माइक्रोब्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्ले रोल इन ह्यूमन लाइफ. सेवरल माइक्रोब्स आर यूजफुल टू मैन इन डाइवर्स वे. डिफरेंट वे में ह्यूमन बींग के लिए वो यूजफुल है. Okay, you see the microbes here, that is inoculation in the laboratory conditions. इसको laboratory condition में ग्रोथ कराया गया है. You see here ये पेट्री डिश है. पेट्री डिश में न्यूट्रिएंट मीडियम रख करके उसमें हम बैक्टीरिया के स्मॉल पिंच, जो निडल का स्मॉल पार्ट है, ठीक है, टिप, उतना थोड़ा सा बैक्टीरिया केवल इसमें डालते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम में. एंड केप्ट इनसाइड द लेबोरेटरी कंडीशन. ठीक है, इसका जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है उसको मेंटेन करके उसमें हम रख देते हैं नियर अबाउट 1 वीक टू 15 days. दैट इज ए कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया और फंगस दैट इज ग्रो इनसाइड द पेट्री डिश. ओके, so in human life there is very important role play, just like the formation of bread, formation of cake, formation of beverages just like a wine,
formation of other fermented materials just like juices. That is also helpful for the formation of biofertilizer which are useful for the agriculture fields. That is also useful in case of sewage treatment. सीवेज के ट्रीटमेंट में भी बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं. ओके, सो हाउ कैन दैट इज हेल्पफुल in case of human beings? The microbes that used in different way, just like first one, microbes in household product. ठीक है, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट. कुछ घर के प्रोडक्ट होते हैं जिसके थ्रू माइक्रोब्स थ्रू हम ग्रोथ कराते हैं, एंड दिस इज द यूजफुल फॉर अस. ओके, जस्ट लाइक ए फॉर्मेशन ऑफ कर्ड्स, ठीक, योगर्ट etc. We discuss one by one. Second, microbes in industrial. Microbes that is the very important play a role in case of industrial product. Just like that is used in the fermented beverages. इसमें जैसे बैक्टीरिया इसका यूज़ किया जाता है. फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, formation of different type of chemical enzymes and bioactive molecules that is formed through the microbes. Third one, microbes in sewage treatment. जो microbes होते हैं sewage treatment में useful होते हैं. We also discuss in later about them. There is the different type of microbes are used, just like one example here is the methanotropic bacteria that is used here. Okay, as well as the other bacteria are also useful in case of sewage treatment. Next one is the microbes in production of biogas. Biogas production के लिए decomposition होता है waste material of the animals. ठीक है, तो you know what them contain the bacteria is metanotropic bacteria. That is clear, मेथनोजेंस होते हैं. Next one is the microbes as a biocontrol agents. Some microbes that is developed which are useful for the biocontrol agent की तरह वर्क करते हैं. ठीक है, इसको आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. यहाँ पर भी आपको डिस्क्राइब किया जाएगा कुछ पार्ट को. जैसे इसमें एक था बैसिलस thuringiensis, ये ग्रोथ कराया गया है विच आर हेल्पफुल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द कॉटन बॉल वर्म को प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज़ किया गया. ओके, नेक्स्ट वन, माइक्रोब्स एज ए बायोफर्टिलाइज़र. माइक्रोब्स को बायोफर्टिलाइज़र के रूप में भी प्रयोग किया गया है बिकॉज जो आपका इंडस्ट्रियल या फैक्ट्री के जो फर्टिलाइज़र होते हैं दैट इज़ डायरेक्टली अफेक्ट द फील्ड्स. माइक्रोब्स को किल करते हैं. ठीक, प्रोडक्शन को डिक्रीज़ कर रहे हैं क्योंकि एक ही तरह का न्यूट्रिएंट आप यूज़ कर रहे हैं, एक ही तरह का फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं. यूरिया आप ज़्यादा डाल रहे हैं तो उससे क्या होगा, अदर न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट को नहीं मिल पाते, जिससे प्रोडक्शन कम होता है. तो उसको दूर करने के लिए हम बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं. मीन्स दैट इज फर्टिलाइज़र मेड बाय द माइक्रोब्स. ठीक है, इसके थ्रू दे कंटेंट अ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट. वी आल्सो डिस्कस अबाउट देम. सो दिस द डिफरेंट वे द माइक्रोब्स प्ले important role in human welfare. We discuss one by one. ठीक है, today we describe only microbes in household product. ठीक है, आज केवल एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट. हाउसहोल्ड प्रोडक्ट में कैसे ये यूजफुल है. तो हाउ कैन माइक्रोब्स इज यूजफुल इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट वाला इसमें आपका डेयरी प्रोडक्ट. इन केस ऑफ डेयरी प्रोडक्ट देर इज द वन वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया प्रेजेंट जिसको हम कॉमनली बोलते हैं लैब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया.
okay, which grow in milk and convert it to the curd. तो मैक्सिमम जो मिल्क में बैक्टीरिया होता है उसको हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोलते हैं. ओके, एंड दिस इज द ग्रुप ऑफ लैक्टोबैसिलस. ओके, तो देयर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं यह बैक्टीरिया. जस्ट लाइक फर्स्ट थिंग वी डिस्कस हियर इज द कर्ड. Indian curd prepared by the inoculating skimmed and cream milk with Lactobacillus acidophilus at a temperature of about 40 डिग्री सेल्सियस आर लेस. ठीक है, इसमें मिल्क जो विदाउट क्रीम निकाला हुआ मिल्क लेकर के उसको नियर जो टेम्परेचर होता है उसका 40 डिग्री सेल्सियस रखते हैं या उससे कम. उसके बाद उसमें लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया को डाल देते हैं विच ग्रो इनसाइड देम. कर्ड की बात करें तो कर्ड इज़ द मोर न्यूट्रिशन दैन द मिल्क. कर्ड जो होता है बेनिफिशियल होता है अदर दैन द मिल्क. मिल्क के अपेक्षा कर्ड बहुत ज़्यादा उपयोगी है, फ़ायदेमंद है. क्यों? इट कंटेन अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड विटामिन इंक्लूडिंग B12. इसमें ऑर्गेनिक एसिड ज़्यादा होता है एज वेल एज दैट इज कंटेन द विटामिन B12. B12 की इसमें मात्रा बहुत ज़्यादा होती है. दैट इज क्लियर. दूसरा प्रोडक्ट है योगर्ट. योगर्ट क्या होता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कर्डलिंग मिल्क विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस. दो बैक्टीरिया है इसमें इसका यूज़ करते हैं. दैट इज कर्डलिंग मिल्क. ये क्या करते हैं? मिल्क को कर्डलिंग कर देते हैं. द टेम्परेचर इज मेंटेन एट अबाउट 45 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 आवर. यहाँ पर टेम्परेचर इसका मेंटेन किया जाता है 45 डिग्री सेल्सियस 4 आवर के लिए. इट हैज़ ए फ्लेवर ऑफ लैक्टिक एसिड एंड एस्टल्डिहाइड. इसका फ्लेवर लैक्टिक एसिड और एस्टल्डिहाइड की तरह रहता है. एंड योगर्ट इज ऑफन स्वीटेंड एंड मिक्स विथ फ्रूट. यह आपका मीठा भी होता है एज वेल एज दैट मिक्स विद द फ्रूट. फल के साथ इसका मिक्स भी किया जाता है. थर्ड प्रोडक्ट है बटर मिल्क. इट इज एसिडुलेटेड प्रोडक्ट विच इज फॉर्म बाय इनोकुलेटिंग skimmed milk with starter culture of Streptococcus cremoris, Streptococcus lactis, Lactobacillus acidophilus, Leuconostoc species at 22 डिग्री सेल्सियस फॉर 18 आवर. ठीक है, डिफरेंट बैक्टीरिया को जो अभी डिस्कस किए जैसे स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस है, एसिडोफिलस है, इसको डाल करके नियर अबाउट 22 डिग्री सेल्सियस फॉर 18 आवर के लिए छोड़ देते हैं. एसिडुलेटेड लिक्विड लेफ्ट आफ्टर चर्निंग ऑफ बटर फॉर्म फ्रॉम कर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड बटर मिल्क. ठीक है, इसके थ्रू बटर का फॉर्मेशन होता है. और इसके लिए जो बैक्टीरिया है वो लैक्टोबैसिलस, यू सी okay, you see the diagram of lactobacillus. यह लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का डायग्राम है. यू सी आइडेंटिफाई हियर रॉड शेप बैक्टीरिया है विच आर यूजफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट. माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट की बात कर रहे थे तो 3 आपके बता चुके. वन इज द कर्ड, अनदर इज गॉड, थर्ड वन बटर मिल्क. नेक्स्ट है शॉवर मिल्क. दूध का खट्टा होना. The other product
दैट इज द sour cream. Sour जो खट्टे क्रीम होते हैं. Cream obtained by the churning of milk is inoculated with the Streptococcus lactis for producing lactis and Leconostoc cremoris. इसको यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को. जो मेन इंपॉर्टेंट है चीज़. चीज़ इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मिल्क प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स. ठीक है, माइक्रोब्स के थ्रू इसका ग्रोथ कराते हैं. The cheese are formed with different texture, flavor and taste. Curdling is done with the help of lactic acid bacteria and enzyme renin. इसमें lactic acid bacteria होता है as well as the renin enzyme होते हैं which are obtained from the rennet from the cough stomach or fruit extract of the Bidenia coagulans के थ्रू हम इसको ऑब्टेन करते हैं. इट प्रिपरेशन ऑफ रॉ चीज़ मिल्क. ये रॉ चीज़ मिल्क का फॉर्मेशन करते हैं. मिल्क इज कर्डल विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. ये कर्डलिंग हो जाती है. द कर्ड इज हीटेड जेंटली टू सेपरेट चीज़ फ्रॉम वाई. ठीक है, इसको सेपरेट कर लिया था हीट करके. एनी लिक्विड लेफ्ट इन चीज़ इज अलाउड टू ड्रेन बाय हैंगिंग इन द क्लॉथ. उसको यदि वाटर उसमें लिक्विड प्रेजेंट है तो वाटर में बांध करके उसको हम क्लॉथ में कपड़े में लपेट के ऊपर रख देते हैं और पानी को उसमें से निकाल देते हैं. अनराइप्ड और कॉटेज चीज़ इज प्रिपेयर्ड बाय सिंगल स्टेप्स फर्मेंटेशन. सिंगल स्टेप में ही जो ऑफ्टन करते हैं चीज़ वह अनराइप्ड होता है. कॉटेज इज चीज़ भी बोलते हैं. which are involves inoculation of skimmed milk with the cheese culture. Curd is placed in the cloth lined porous container for draining out way. ठीक है, पोरस कंटेनर जो क्लॉथ है उसमें उसको रख देते हैं. दूसरा प्रोसेस आपका प्रोडक्ट है चीज़ का राइपेंड चीज़. राइपेंड चीज़ इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द अनराइप्ड चीज़. जो अनराइप्ड चीज़ है उससे से इसको फॉर्मेशन करते हैं बाय फर्स्ट डिपिंग इन brine whipping and then maturation with the different strain of bacteria and fungi. ठीक है, डिफरेंट बैक्टीरिया और फंगी के द्वारा ये कन्वर्ट होता है. इट टेक्स 1 to 16 मंथ फॉर राइपनिंग. और इसको राइपनिंग होने में जो राइपनिंग चीज़ होता है इसको राइपनिंग होने में 1 to 16 मंथ लगते हैं. लार्ज होल्ड स्विस चीज़ इज राइपेंड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसिंग. जो लार्ज होल्डेड स्विस चीज़ होते हैं जो बड़े बड़े उसमें होल्स बने होते हैं ड्यू टू द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसिंग करते हैं बैक्टीरिया कॉल्ड द प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरेमनी. याद रखिएगा एग्जाम में आता है. दैट इज यूज फॉर्मेशन ऑफ द स्विस चीज़. प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरेमनी. रॉकी फोर्ट चीज़ दूसरा नेक्स्ट चीज़ है. रॉकी फोर्ट चीज़ यूज पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी. ये पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी के थ्रू बनाते हैं. कैमेम्बर्ट चीज़ इज़ द पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी फॉर राइपनिंग. इसका यूज़ करते हैं. दैट इज़ क्लियर. यू सी देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ आर प्रेजेंट हियर which are used. माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट की बात करें तो पहला आपका था डेयरी प्रोडक्ट में. क्लियर हो गए. नेक्स्ट अदर प्रोडक्ट वी आल्सो ऑब्टेन. जैसे ब्रेड है, घर में यूज़ करते हैं ब्रेड. ब्रेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड आर बेकरी इंडस्ट्रीज विच आर यूज द ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसी को यूज़ किया जाता है. ओके. थर्ड वन दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डोसा उपमा एंड इडली. दे आर फर्मेंटेड प्रिपरेशन ऑफ राइस एंड ब्लैक ग्राम. ठीक है, कैसे बनाते हैं? फर्मेंटेटेड प्रोसेस के थ्रू राइस और ब्लैक ग्राम को मिक्स करके बनाते हैं इसको. द टू अलाउड द फर्मेंट फॉर 3 to 12 आवर with the born Leuconostoc and Streptococcus species of bacteria.
ये बैक्टीरिया उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन, जब फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, डिग्रेड करता है, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। एंड पफिंग ऑफ द डफ, ठीक, उसके पफ बन जाता है, मतलब आपका बबल्स बाहर निकलते हैं, जिससे वो स्पॉन्जी हो जाता है। अदर फूड प्रोडक्ट जस्ट लाइक tempeh in the Indonesia, tofu in Japanese, and sufu in Chinese are fermented food often from soybean. सोयाबीन से इसको ऑप्टेन करते हैं। सोया सॉस इज़ द ब्राउन फ्लेवर्ड सॉल्टी सॉस फर्मेंटेड फ्रॉम द सोयाबीन एंड वीट। जो सोया सॉस बनाया जाता है ये इसी के थ्रू बनाया जाता है, फर्मेंटेड करके वीट के साथ मिक्स करके बनाते हैं सोयाबीन को। That is clear. Next is the SCP. We also discussed in previous videos. Single cell proteins that use the very important role in the formation of proteins. Spirulina, there is the most important, as well as the Fusarium graminearium that is used for the production of single cell proteins. And last of substance, old product, दैट इज़ द टॉडी। गाँव में देखते हैं टॉडी लोग पीते हैं, ठीक है। इट इज़ द ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट ऑफ साउथ इंडिया विच इज़ मेड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ सैप ऑफ पाम। जो सैप ऑफ पाम का जो मिल्क होता है, जो सीक्रेट होता है, उस वो फर्मेंटेड होने का अफेक्ट करता है। अ कॉमन सोर्स ऑफ टैपिंग ऑफ अनओपन स्पेडिस कोकोनट, ओके। और आफ्टर 24 आवर टाड़ी बिकम्स अनपैलेटेबल्स। यदि टाड़ी तुरंत यूज़ किया जाता है तो ठीक है, अदरवाइज वो पॉइजनस होता है, बिकॉज और उसमें जो अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, वो अफेक्ट ज़्यादा करता है। ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, और इसका फर्स्ट पार्ट वी डिस्कस टुडे, दैट इज़ द हाउस होल्ड प्रोडक्ट। Thanks for watching the video. Here is the, you see, before we ending them, you see there is the Saccharomyces cerevisiae species है ये, okay, ये Saccharomyces cerevisiae species है which are used for the different fermentation process। जो अभी बताया जितने मैक्सिमम प्रोसेस, इन सब में मैक्सिमम यूज़ किया जाता है Saccharomyces cerevisiae का। थैंक यू।